Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of December 2021, Thursday. Inspiration of the day is turn your wounds into wisdom. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. MPC gets battle ready as Omicron fears loom large. As I discussed in the yesterday news that the study conducted by Bloomberg shown that Omicron is going to reduce the pace of global economic growth as well as it is going to have impact on inflation as well. So after all these types of calculation, Monetary Policy Committee, in short we call it MPC. So Monetary Policy Committee members are all ready for policy changes in order to curb the rising inflation or policy accommodation for rising inflation. So MPC meeting was conducted on Monday and minutes of meeting has been released by government, and as per the minutes of meeting, MPC members fears the rising inflation. They are also anticipating that inflation will rise, but instead of that, MPC cannot go for policy tightening. It means MPC cannot go for contractionary monetary policy. Why? Because as per the MPC members, the economic growth is not sufficient enough. It means Indian economy is not growing sufficiently enough in order to merit the policy tightening. So it means if MPC members decide for policy tightening, for contractionary policy, for absorbing the liquidity from the market, that will not actually benefit the inflation. Why? Because there is not sufficient economic growth. Economic growth अभी इतनी sufficient नहीं है कि policy tightening और policy rate के change को contractionary policy rates को adopt कर पाए, क्योंकि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पैंडमिक की सेकेंड वेव से रिकवर कर रही है. अभी फुल फेज की इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं करी है इंडियन इकोनॉमी ने. द 6-member MPC which announced its outcome on December 8 voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged. It means MPC do not want to change the policy repo rate. क्यों? क्योंकि it is all prepared for Omicron fears. Why? Because it is anticipated, it is expected due to Omicron, inflation will further increase, economic growth will further get down, and there will be uncertainty in the market. So in order to keep all these changes in the mind, फिलहाल के लिए MPC कमेटी जो कि 6-member की कमेटी है, उसने अभी ये डिसाइड किया है यूनानिमसली, मतलब वोटिंग के बेसिस पर. आपको पता होगा वोटिंग के बेसिस पर डिसीजन होता है. तो सारे ही मेंबर्स ने एक ही डिसीजन पर वोट किया कि पॉलिसी रेपो रेट को अभी फिलहाल के लिए अनचेंज रखा जाए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ MPC. तो 6 member MPC के होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है, कैसे इनका सिलेक्शन होता है. हालांकि अगर एक्सटर्नल मेंबर्स की बात करें MPC के, तो एक एक्सटर्नल मेंबर्स ने ये इस पर्टिकुलर डिसीजन पर वोट किया था कि अब RBI को, अब MPC को एकोमोडेटिव इंस्टांस नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि एकोमोडेटिव इंस्टांस की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है. लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है. मार्केट में मनी होगा तो उसका सीधा फर्क किस पे पड़ेगा, डिमांड पर पड़ेगा. डिमांड ज़्यादा होगी बट अगर उस प्रोपोर्शनेट में सप्लाई नहीं होगी तो दैट में लीड्स टू इन्फ्लेशन. ये सीधा सा एक लिंक जनरेट होता है. तो इसीलिए जो एक्सटर्नल मेंबर हैं उनका ये कहना था, एक एक्सटर्नल मेंबर का था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज किया जाए. द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट रिमेन अनचेंज एट 4% एंड 3.35% रिस्पेक्टिवली आफ्टर द December 8 policy meeting. The RBI governor has also worried about the Indian economy facing several headwinds emanating from global factors. Some old ones were getting prolonged while new ones were emerging as per our RBI governor. तो कई सारे ऐसे ग्लोबल फैक्टर पैंडेमिक के अलावा भी जो कि इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसे फैक्टर जो पहले पैंडेमिक से पहले भी थे वो अभी और लिंगर ऑन हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग न्यू चैलेंजेस. तो इसको देखते हुए
फिलहाल के लिए जो एमपीसी ने डिसीजन लिया है दैट इज पॉलिसी अनचेंज व्हाइल द इंडियन इकोनॉमी इज ऑन इट्स वे टू अचीव द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 9.5% इन फाइनेंशियल ईयर 22, बट देयर आर कंसर्न ऑल्सो कि जो Q4 के रिजल्ट होंगे वो कैसे होंगे। इसके अलावा ओमिक्रॉन जो है वो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो भी प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। चाहे किसी भी आप रेटिंग हाउस का प्रोजेक्शन लें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का प्रोजेक्शन लें, सब ने ये कहा था कि 23 तक इंडियन इकोनॉमी जो है फुल स्विंग से ग्रो करेगी। लेकिन अब चूंकि ओमिक्रॉन का फियर आ गया, उसकी वजह से Q1 और Q4 यानी इस फाइनेंशियल ईयर का Q4 और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का Q1 को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। देयर आर सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ कंसर्न एज पर द आरबीआई गवर्नर। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करी जाए तो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यूल पर टैक्स कम किया है उससे लेकर के इकोनॉमी में बेनिफिट तो आया है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मोबाइल टैरिफ सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं 20%। अभी अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा कि टेलीकॉम्स ने 20% अपने अपने टैरिफ हाई किए हैं। तो उसकी वजह से जो कोर इन्फ्लेशन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, और हम देख भी रहे हैं कंटिन्यूसली सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हालांकि अगर सीपीआई को थोड़ा सा देखा जाए तो सीपीआई इज अंडर द टारगेट 6 के नीचे चल रही है अभी, लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है वो डबल डिजिट का मार्क क्रॉस कर चुकी है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है इस समय। तो इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न फॉर एमपीसी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें एमपीसी का जो ऑब्जेक्टिव है, एमपीसी का जो मैंडेट है दैट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को, एमपीसी को इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, और आरबीआई का टारगेट जो है इन्फ्लेशन को लेकर के दैट इज 4+-2 यानी 2 से 6 तक की रेंज है। So RBI is actually adopting all the ways to control the inflation under the target। तो इसी को लेकर के जो आरबीआई गवर्नर है उनका ये कहना है कि टैक्स जिस तरह से फ्यूल पे कटा है उसने इकोनॉमी को बेनिफिट किया, लेकिन मोबाइल के टैरिफ बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, जो इसका इवेंचुअली जो प्रेशर है वो इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन पर जा रहा है। द इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट 5% in the second half, but MPC must remain vigilant to incipient cost push pressure to inflation as well as the uncertainty imparted by Omicron as per the RBI governor। हालांकि जो एक्सटर्नल मेंबर थे एमपीसी के उनका अपना अलग पॉइंट था दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर एमपीसी मिनट्स ऑफ मीटिंग। आपको पता होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पर मीटिंग में क्या क्या हुआ, कितने मेंबर प्रेजेंट थे, किस तरह के डिसीजन लिए उस कमेटी ने, ये पब्लिश किया जाता है। तो दिस इज द की पॉइंट और दीज आर द की पॉइंट्स एंड दिस इज द टेक बाय एवरी मेंबर ऑफ एमपीसी। नाउ यू कैन सी द मेंबर्स नेम एज वेल and what is their instance on policy change or policy framework related to inflation। And definitely you not need to remember this, you can just have the glimpse of it in order to understand what is the upcoming stance of RBI on Indian economy। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी जो इसी इकोनॉमी से रिलेटेड थी, तो मैंने इसको साथ में ही कवर करने की कोशिश करी है। Economists to FM avoid sharp fiscal corrections। So ahead of union budget, economists, strategists, advisors are actually advising finance minister and ministry official to avoid any sort of sharp fiscal correction। फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कोई शार्प फिजिकल करेक्शन ना किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली गवर्नमेंट जो है वो अपने फिजिकल डेफिसिट टारगेट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दे, बहुत ज़्यादा टाइट कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए एज़ पर द इकोनॉमिक एडवाइज़र, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहे हैं कई टाइम से। हमने डिस्कस भी किया 8 to 9 और 10% तक फिजिकल डेफिसिट गई है फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के 22 और 23 तक की। हालांकि 22 का जो टारगेट था वो 6.8 था, ऐसा कहा जा रहा था कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 6.5 रखा जाएगा। और इसी फियर को कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट 6.5 से भी रिड्यूस करके 5 या 4 पर फिजिकल डेफिसिट का टारगेट ले आए, इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस कर रहे हैं कि देयर इज नीड टू अवॉइड द शार्प फिजिकल करेक्शन एंड मेंटेन फोकस ऑन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू फर्दर द रिवाइव कनेक्शंस एंड डिमांड। तो कंजप्शन को रिवाइव करने के लिए, डिमांड को मेंटेन करने के लिए अभी फिलहाल को गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को अभी बहुत ज़्यादा
फिस्कल करेक्शन पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो प्री बजट नेगोशिएशन में, प्री बजट मीटिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट के साथ हो रही है, उसमें ये एडवाइजेबल रखा गया है that centers should go for, so strive for consistency and stability in the tax policy instead of टिंकरिंग विद द रेट टू मच। ऐसा नहीं कि टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। अभी फिलहाल के लिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट गो फॉर पॉलिसी टाइटनिंग, शुड नॉट गो फॉर साफ फिस्कल करेक्शन, जस्ट टू अलाइन देयर पॉलिसी जेस्चर विद द MPC। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। मेजर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट टेक्स अ स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेटिंग ट्रिपल पी टैरिफ एट मेजर पोर्ट्स। तो इन अ मेजर रिफॉर्म टू पोर्ट सेक्टर, अगर आप देखें तो रिसेंटली जो करंट गवर्नमेंट है वो हर सेक्टर में, चाहे वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो डेटा स्टोरेज हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी हो, अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्टर में रिफॉर्म ला रही है। तो अब पोर्ट सेक्टर में रिफॉर्म लाते हुए एक मेजर रिफॉर्म पोर्ट सेक्टर में लाया जा रहा है, जिससे कि जो ग्लिचेस हैं, जो चैलेंजेस हैं पोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे रिमूव किए जा सके, उन हर्डल्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन चैलेंजेस को मिटिगेट किया जा सके। सो इन अ मेजर रिफॉर्म फॉर द पोर्ट सेक्टर, यूनियन मिनिस्टर announced the tariff guideline for public-private partnership project in major ports. So we call this public-private partnership project in short triple P projects in major ports, saying that it will usher in new era of market economy and make major ports more competitive. तो सीधा सीधा रीज़न है कि जो चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करना है। और जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं और कितने माइनर पोर्ट्स हैं, आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स इंडिया हैज़ करेंटली। ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए पोर्ट में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं और जो मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ऑल दीज शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स विल एक्चुअली मेक द इंडियाज मेजर पोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। और जो सबसे एक बोल सकते हैं की पॉइंट है इस पर्टिकुलर न्यू एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसके अकॉर्डिंग टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टैम्प बोलते हैं, टैम्प इज गोइंग टू बी एबॉलिश। टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, दिस अथॉरिटी इज नाउ गोइंग टू बी abolished and as per the new act. The need of tariff guidelines 2021 for triple P projects in major ports arose consequent upon the new Major Port Authority Act 2021, जो कि नवंबर 3, 2021 से इफेक्ट में आ चुका है। तो टैरिफ को लेकर के नई टैरिफ गाइडलाइंस भी इस न्यू एक्ट में प्रपोज करी गई हैं, जस्ट टू मेक इट अलाइंड विद द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। क्योंकि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह की कंपनी का पार्टिसिपेशन होता है, सिनर्जी जनरेट करी जाती है। तो प्राइवेट बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करता है? प्राइवेट इन्वेस्ट इसलिए करता है कि क्योंकि प्राइवेट को उससे प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए टैरिफ पॉलिसीज़ को रिवाइज़ किया गया है, टैरिफ गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया गया है, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आए बाय दिस पार्टनरशिप। और जो पोर्ट डेवलपमेंट का जो एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले और जो इंडिया के पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वो रिड्यूस हो सके। According to the statement, currently major ports triple P concessionaires handle around 50% of total tariff handled by all the major ports in India. तो triple P projects जो हैं वो अभी तक 50% का टोटल टैरिफ हैंडल करते हैं। एंड द गाइडलाइंस विल अलाउ ऑल दिस कंसेशनर एट मेजर पोर्ट टू सेट टैरिफ एज पर द मार्केट डायनामिक। दिस इज द की पॉइंट दैट हैज बीन सजेस्टेड अंडर न्यू टैरिफ गाइडलाइंस। मार्केट डायनामिक्स के अकॉर्डिंग अब जो टैरिफ हैं वो डिसाइड किए जा सकते हैं फॉर दीज ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पोर्ट के केस में, पोर्ट डेवलपमेंट में, दे विल गेट बेनिफिटेड। इट इज़ नोटेड दैट द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांजिशन टू मार्केट लिंक टैरिफ इज दैट अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट दिस विल ऑल्सो मेक द पोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। अगर जो मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं तो
जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर वो लॉस में जा रही हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन टैरिफ, वो अपने लॉस को ओवरकम कर सकती हैं. दे विल हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट. अगर कम है तो उन्हें प्रेशर में आकर के कम करना पड़ेगा. मार्केट डायनेमिक्स पे बेस कर दिया है, मीन्स जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी इन सारे मेजर पोर्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी तरह के अपना टैरिफ एडजस्ट करेंगे. अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा. डेफिनेटली इट विल ऑल्सो मेक द टैरिफ मोर कॉम्पिटिटिव, इंडियन मेजर पोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव. अपार्ट फ्रॉम इट विल ऑल्सो मेक ऑल दीज प्रोजेक्ट्स मोर वाइबल एंड इन फ्यूचर इट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट. तो ऐसा कहना है हमारे मिनिस्टर साहब का. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी टू कंसीडर डिमांड क्लाइमेट टारगेट्स. जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, रिसेंटली गवर्नमेंट इज डूइंग रिफॉर्म्स इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी सेक्टर फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेन ट्रेड, टेलीकम्युनिकेशन, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी. हर सेक्टर में लगभग रिफॉर्म्स हो रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक देम ऑल दीज फैक्टर अलाइंड विद ईच अदर विद द मेजर पॉलिसी gesture of complete economy. So as per the center is preparing the new electricity policy NEP. नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आ रही है और ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेंटर का ये कहना है कि जो भी नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी जिसने भी इंडिया के जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे जितने भी इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट हैं कार्बन ट्रेडिंग को लेकर के, एमिशन को लेकर के, उन सारे क्लाइमेट कमिटमेंट को ध्यान में रख करके NEP बनाई जा रही है. इसके अलावा जो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है इंडिया में, क्यों इंडिया इज़ अ डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को भी बैलेंस करने का विद सस्टेनेबल मेजर्स, इन सारे की पॉइंट्स पर फोकस किया गया है. इट मीन्स द न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन द क्लाइमेट कमिटमेंट ऑफ इंडिया, rising demand of electricity with all sustainable measure, while the Ministry of Power is of the view that the electricity production has become the greener now. और हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि अगर आप देखें तो इंडिया की जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है ईयर बाई ईयर. और आगे आने वाले समय में इंडिया ने अपने लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट रखे हैं. इफ़ यू आर फॉलोइंग, अभी जो रिसेंटली क्लाइमेट डील हुई थी उसमें इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट रखे हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इंडिया का 2022 के लिए क्या टारगेट था और क्या इंडिया ने वो अचीव किया रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, और 2035 के लिए इंडिया ने क्या टारगेट रखा है अपने एनर्जी मिक्स को लेकर के. तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो अब थोड़ा सा ग्रीनर हुआ है. लेकिन अगर कोल मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स पर जाएं तो कोल मिनिस्ट्री का ये कहना है ठीक है आपका जो शिफ्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने बहुत सारी न्यूक्लियर डील्स भी करी हैं. लेकिन अगर कोल की डिमांड की बात करी जाए तो स्टिल कोल प्रोडक्शन विल नॉट गोइंग टू बी हैम्पर्ड. क्यों? क्योंकि अभी भी इंडिया में कोल की जो डिमांड है वो सफिशेंटली अवेलेबल है और जितना कोल प्रोडक्शन है उससे हम इंडिया की जो कोल डिमांड है उसको पूरा, या हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को अलाइन कर रही हैं. डिमांड इतनी है उतना ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाली है. एन एक्सपर्ट कमेटी हैज़ बीन सेटअप फॉर दिस न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी फॉर कंसल्टिंग the formulation of this new policy, and as per that expert committee, new coal-based power generation should not be taken up unless it is for replacing older units और non-fossil sources cannot meet the demand. और अगर नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की बात करी जाए तो NEP नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो पॉलिसी है सबसे पहली 2005 में आई थी. अब गवर्नमेंट फिर से ड्राफ्ट कर रही है, हालांकि ड्राफ्ट होते होते इट विल बी फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर 22, तो ये आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट करी जाएगी प्रॉबेबली इन पार्लियामेंट. तो जो मेजर ओवरऑल फोकस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इज गोइंग टू फोकस ऑन डिमांड प्रोजेक्शन एंड फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन एज वेल. और अभी भी बहुत सारे
कंसल्टेशन और नेगोशिएशन चल रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्मलाइज दिस न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, इन शॉर्ट वी कॉल इट NEP. अब देख लेते हैं some other news clips. Zee-Sony merger finalized. So finally, one of India's largest media deals has been cleared by the board of Zee Entertainment Enterprise. In short, we call it ZEAL. ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग तो जो अनाउंसमेंट हुआ था सोनी और जी के मर्जर का वो फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है. And the combined entity with revenue roughly 14,000 crore is India's second largest media firm. So after this merger and acquisition, the new entity that is going to be formed will be the 14,000 crore valuation with the second largest media firm. Which one is the first? कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे बताइए कौन सी इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट मीडिया फर्म है आफ्टर बिफोर दिस. और अगर थर्ड की बात करें तो गूगल इंडिया, देन फोर्थ टाइम्स ग्रुप, फिफ्थ फेसबुक इंडिया. ऑल दीज आर द लार्जेस्ट मीडिया फर्म दैट आर कॉम्पीटिंग इन इंडियन मार्केट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. न्यू प्रोविजन फ्रॉम Jan 1, GST ऑफिशियल टू मेक सरप्राइज रिकवरी विजिट. तो जनवरी 1 से एक नया प्रोविज़न आ रहा है. उस प्रोविज़न के तहत जनवरी 1 से गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर्ड द GST ऑफिशियल. किस लिए एम्पावर्ड किया GST ऑफिशियल को? टू सेंड इट्स रिकवरी ऑफिशियल टू योर प्रमाइसेस टू कलेक्ट द GST विदाउट नोटिस. तो अब GST ऑफिशियल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह रेड भी मार सकते हैं. दे कैन कम टू द प्रमाइस ऑफ एनी एंटरप्राइज विदाउट द notice and they can actually recover the amount or the tax liability that has not been paid or tax liability that has not been matched with the reported transactions. So if the tax liability shown in the requisite form is less than what has been invoiced, in that case recovery by GST official may be surprised as per the new norms that is going to be implemented from Jan 1. तो फाइनेंस एक्ट 2021 में चेंज किया गया और इस अमेंडमेंट को लाया गया और इस अमेंडमेंट के तहत अब GST ऑफिशियल के पास सरप्राइज विजिट करने की पावर होगी इंडेफिनेटली. बस यस दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट. And this is the data that you can see. GST evasion. The red bar indicates the GST evasion and blue bar indicates the GST evasion recovered by GST official. तो आप देख सकते हैं कि GST evasion बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेक क्या कहते हैं इन्वॉइसेस जनरेट हो रही हैं और जो इन्वेस्टर्स एक्चुअल है उनको हाइड किया जा रहा है. तो अब देयर इज़ अ टाइम फॉर रेगुलेटिंग इट. तो GSTR 1 और GSTR 3B दो तरह के बेसिकली रिटर्न होते हैं. टू काइंड्स ऑफ रिटर्न्स आर देयर इनटू GST सिस्टम दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. इन सभी को अब प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रोविजन को इनेबल किया गया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया नाउ थर्ड इन द लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स. सो adding 42 unicorns in a single year, it means financial year 22 42 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं इंडिया की लिस्ट में. एंड आफ्टर दिस एडिशन इंडिया डिस्प्लेस the UK to become the third in the list of countries that are home to such enterprises valued over $1 billion each. यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जो कि $1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर चुके हैं. दैट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स आर कॉल्ड एज यूनिकॉर्न. इसी तरह डेकाकॉर्न होते हैं. तो यूके को रिप्लेस कर दिया है. इन शॉर्ट इंडिया ने किस चीज़ में रिप्लेस कर दिया है? इन टर्म्स ऑफ such enterprises or in terms of being the home to such enterprises valued at over $1 billion according to the recent report released on Monday. अभी तक इंडिया चौथी पोजीशन पर था और वो भी कब? लास्ट ईयर आया था. फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया ने चौथी पोजीशन गेन की थी और 22 आते आते इंडिया थर्ड पोजीशन पर आ गया है यूके को रिप्लेस करते हुए. तो अब क्वेश्चन ये उठता है पहले दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे यूएस है और डेफिनेटली दूसरे नंबर पे नन अदर देन चाइना. चाइना ने यूएस और चाइना ने ये दो पोजीशन फर्स्ट टू रैंक ऑक्यूपाई करी हुई हैं. दे आर वे अहेड विद इंडिया एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय होरम रिसर्च इंस्टीट्यूट.
यूएस एडेड 254। अगर देखें इंडिया से बहुत आगे हैं ये, थर्ड पोजीशन पर तो इंडिया है, दैट इज़ ओके, बट अगर फर्स्ट और सेकेंड रैंक को देखा जाए तो इंडिया से वो बहुत आगे हैं। यूएस ने इस साल 254 यूनिकॉर्न ऐड किए हैं लिस्ट में, and now total 487 companies in the coveted list. तो approximately US के पास 487 अप्रॉक्सीमेटली यूएस के पास यूनिकॉर्न्स करेंटली हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने इस फाइनेंशियल ईयर में 74 यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं और जो इसकी टोटल टैली है वो 301 हो गई है। और इंडिया ने इस साल अप्रॉक्सीमेटली 42 यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं इस लिस्ट में। और इसके बाद इंडिया के टोटल जो यूनिकॉर्न की लिस्ट हो गई है, नंबर हो गए वो 54। कैन यू सी द डिफरेंस इन विद फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन। और अगर कहा जाए, अगर टोटल लिस्ट को देखा जाए यूनिकॉर्न्स की, तो चाइना और यूएसए अकेले 74% यूनिकॉर्न का होम है। मतलब जितने यूनिकॉर्न वर्ल्ड में है, ग्लोबली अवेलेबल है, उसमें 74% चाइना और यूएसए में पाए जाते हैं, यूएसए ने अचीव किए हैं, या यूएसए और चाइना में अवेलेबल हैं। दे आर द होम ऑफ दीज 74% यूनिकॉर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस साल अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 673 नए यूनिकॉर्न ऐड हुए हैं लिस्ट में, और अप्रॉक्सीमेटली 201 जो हैं उस लिस्ट से आउट हुए हैं। सो इंडिया इज इन द मिस्ट ऑफ इट्स स्टार्टअप बूम्स, मोर देन डबलिंग इट्स यूनिकॉर्न टू टेक द कंट्रीज ऑफिशियल टैली ऑफ द यूनिकॉर्न 54 and overtaken the UK to third position in the world as per the recent release report. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बैंक रेज ₹37K crore via 81 bonds. So Indian banks have raised over 37,000 crore through fresh issuance of additional tier 81 bonds so far in the current financial year 22। तो एज पर द डेटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, इस साल इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने अप्रॉक्सीमेटली 37,000 करोड़ के 81 बॉन्ड इशू किए हैं। 81 बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किया है, हम ये कह सकते हैं। एंड दिस इज हायर देन द 28,430 crore worth of 80 bonds for which call options are still due in financial year 22, addressing the concern on rollers and capital ratio. So this ICRA rating agency has given this projection or this estimation, and as per this report, all PSBs have largely raised the fresh 80 bonds nearly equivalent to call option due in financial year 21, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप देखें 80 बॉन्ड्स तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इशू किए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो नंबर है वो कम है। And the demand from mutual fund investors remained muted, and 81 bonds of PSBs were subscribed by other private banks, pension funds and corporate treasuries as well. तो डेफिनेटली अगर इशू किए हैं तो लेने वाले भी होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उन्होंने इस बार पर्टिकुलर 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। डेफिनेटली आपको पता होगा 81 बॉन्ड्स क्या हैं, कई बार मैंने डिस्कस किया है। इनको परपेचुटी बॉन्ड भी कहते हैं, परपेचुटी डेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। जनरली बैंक्स इस तरह के बॉन्ड अपने कोर इक्विटी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली इन पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया एंड यूके टू स्टार्ट FTA टॉक्स इन न्यू ईयर। तो आगे आने वाले कैलेंडर ईयर में इट इज़ एंटिसिपेटेड इंडिया एंड यूके आर गोइंग टू एम्बार्क द नेगोशिएशन फॉर द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। और ऐसा नहीं कि यूके के साथ ही इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, करंटली देखें तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। यूके के साथ इंडिया इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन को आगे आने वाले ईयर में स्टार्ट करेगा। एज पर द स्पोक्सपर्सन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएशंस आर गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट ईयर। हालांकि कब तक एक्चुअली realize होगा, it is a question mark. India is projected to become the world third largest economy by 2050, और उसी को देखते हुए a trade deal will open the huge opportunity for UK business to trade with India's $2.25 trillion
इकोनॉमी एज पर द ब्रिटिश ऑफिशियल। और जो इस नेगोशिएशन FTA का जो मेन फोकस होगा दैट विल बी द फोकस ऑफ सर्विस ट्रेड इंस्टेड ऑफ गुड, क्योंकि इंडिया इज़ द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इंडिया का रिलायंस है सर्विस सेक्टर पर। तो नेगोशिएशन का जो प्राइमरी फोकस होगा दैट विल बी सर्विस रादर देन गुड, ड्राइवन बाय FTA बिटवीन दीज टू कंट्री बाय अर्ली 2024 एज पर द ऑफिशियल्स। इसके अलावा डेटा शेयरिंग को लेकर के, फिनटेक को लेकर के, IT इन सब सेक्टर पर फोकस रहेगा अंडर दिस नेगोशिएशन। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.